Hello everyone, welcome back to my channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to my channel, please hit the subscribe button given below and let's get started. And if you have not watched my previous video, please go to the link I button given above and you can watch my previous video of solid state complete chapter from part 1 to part 7, and then you can even see the basics of thermodynamics and even the basic from the standard 11th. So we are done with chapter 1 solid state, and today we'll start with chapter number 10 coordination compound. This chapter is from the Maharashtra State Board Chemistry for 12th standard. Okay, so I am going to take the coordination compounds from the Maharashtra State Board Chemistry 12th standard. So what are the topics to be covered in this chapter? So those topics are as follows: introduction, types of ligands, terms used in coordination chemistry, classification of complexes, IUPAC nomenclature of coordination compounds, EAN rule, isomerism in coordination compounds, stability of coordination compounds, theories of bonding in complexes, and application of coordination compound. So these many topics are to be covered in this chapter, and now we'll begin with introduction. So what is coordination compounds? So coordination compounds are made up of transition metals. Now what are transition metals? Transition metals are present in D block. So periodic table is made up of 4 blocks and transition metal belongs to D block element in the periodic table. So it is a D block element of the periodic table. So transition metals are the D block elements of periodic table and they make the coordination compounds. These transition metals are coordination compounds made up of complex compounds in which metals are bonded to number of anions and neutral molecules. तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है डी ब्लॉक एलिमेंट से जो कि है ट्रांजिशन मेटल्स, और वो मेटल्स किसको जॉइंट होते हैं? वो जॉइंट होते हैं एनायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है सिस्प्लैटिन. सिस्प्लैटिन एक एंटी कैंसर ड्रग है, अ केमोथेरेपिक ड्रग. सो दिस इज अ सिस्प्लैटिन. सिस्प्लैटिन इज बॉन्डेड टू 2 अमोनिया एंड 2 Cl. तो Cl पे कौन सा चार्ज होता है? -1 चार्ज. अमोनिया पे कौन सा चार्ज होता है? कुछ भी नहीं. सो अमोनिया इज न्यूट्रल while Cl is an anion. So coordination compounds are the compounds in which metals are bonded to the ligands. You can call them as ligands. So this is a central metal ion and these are the ligands which surround it. जो भी मेटल को सराउंड करते हैं उसे हम लिगैंड्स बोलते हैं. अब ये लिगैंड्स न्यूट्रल हो सकते हैं या फिर एनायन हो सकते हैं. जैसे अमोनिया न्यूट्रल है और Cl माइनस एनायन है. अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. जैसे आयोनिक कंपाउंड्स में होते हैं आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड्स में होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो व्हाट आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स? दे आर स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड किससे बनते हैं? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो सपोज एक कोवैलेंट बॉन्ड है एक्स और वाई के बीच में, तो एक्स अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, वाई अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और दोनों शेयर करेंगे और बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड. बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें एक ही अपना इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा सिर्फ एक्सेप्ट करता है. जैसे यहाँ पे Cl इलेक्ट्रॉन देगा, अमोनिया इलेक्ट्रॉन देगा, बट प्लैटिनम अपना एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा. वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बट वो देगा नहीं, कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. सिर्फ Cl अपना पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे और अमोनिया भी दोनों. प्लैटिनम सिर्फ उसके साथ शेयरिंग कर रहा है विदाउट डोनेटिंग एनी इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाया जाता है एक एरो की तरह. एरो इस तरह से. अब ये एरो का हेड होता है जिसके जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसकी तरफ, और एरो का टेल होता है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसकी तरफ.
तो यहाँ पे सपोज Cl इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक लिगैंड है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए उसका टेल उसकी तरफ है, प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन ले रहा है एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए उसका हेड उसकी तरफ है। तो ये हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस तरह से दिखाया जाता है। अब इधर एक कॉन्सेप्ट आता है लेविस एसिड एंड लेविस बेस, हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिडिटी बेसिसिटी चैप्टर में। तो व्हाट इज बेसिकली लेविस एसिड? लेविस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जो लेविस एसिड होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है BF3, तो जो लेविस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। और लेविस बेसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ओके, सो लेविस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स वाइल लेविस बेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लेविस एसिड और लेविस बेस दोनों होते हैं, क्योंकि मेटल होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब वो लेविस एसिड है, और लिगेंड्स होता है इलेक्ट्रॉन डोनर इसलिए वो लेविस बेस है। तो ये हुआ लेविस बेस और मेटल्स हुआ लेविस एसिड। सो दिस इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड लिगेंड्स। लिगेंड्स कैन बी आइदर एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। सो व्हाट आर टाइप्स ऑफ लिगेंड्स? अभी हमने पढ़ा लिगेंड्स क्या है, जो सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड कर रहा है। अब कितने टाइप्स ऑफ लिगेंड्स है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, एम्बीडेंट लिगेंड्स। इसके नाम से बता सकते हो, मोनोडेंटेड मतलब एक, पॉली मतलब एक से ज़्यादा, और एम्बीडेंट मतलब दोनों। अब इसका मीनिंग क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड्स जो एक ही सिंगल एटम डोनर है, मतलब एक ही एटम थ्रू वो मेटल को अटैच है, तो उसको बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। एग्जाम्पल Cl माइनस, Cl माइनस वाया क्लोरीन सिर्फ मेटल को अटैच होता है, OH माइनस वाया ऑक्सीजन सिर्फ वो मेटल को अटैच होता है, Cn माइनस वाया नाइट्रोजन सिर्फ मेटल को अटैच होता है, सॉरी वाया कार्बन सिर्फ मेटल को अटैच होता है। तो ये होता है मोनोडेंटेड लिगेंड्स, मतलब वाया ओनली 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, इसमें सिर्फ एक ही एटम है जो सेंट्रल में एटम को अटैच होगा। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो एक से ज़्यादा एटम थ्रू मेटल को अटैच होता है। इसके एग्जांपल्स आप ले सकते हो, पहले ये इसको बोलते हैं इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, इसको हम लोग EDTA के नाम से भी जानते हैं, EDTA दैट इज इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। तो यहाँ देखो ये इथिलीन हुआ, ये डायअमाइन हुआ और ये एसीटेट ग्रुप हुआ। हमारे पास कितने एसीटेट ग्रुप है? 1 2 3 4, इसलिए हुआ ये इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। कभी कभी एग्जाम में आपको इसका स्ट्रक्चर पूछेंगे या फिर EDTA का फुल फॉर्म पूछा जाता है MCQs में या फिर 1 लाइन आंसर में, तो आपको पता होना चाहिए यह है इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, अब ये कितना पॉलीडेंटेड लिगैंड है? पॉलीडेंटेड मतलब इसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम्स हैं। अब देखते हैं कितने हैं। देखो नाइट्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ, ऐसा दूसरा नाइट्रोजन भी है। फिर ये O नेगेटिव्स हैं, करेक्ट, तो ये 3 4 5 6। फिर ये कितने बॉन्ड्स बना सकता है सेंट्रल मेटल के एटम के साथ? 6 बॉन्ड्स, इसलिए हम इसे बोलेंगे हेक्साडेंटेड लिगैंड। सो EDTA इज एन एग्जाम्पल of the hexadentate ligand because it can form 6 bond with the central metal atom. Next is oxalate. Oxalate is a bidentate ligand क्योंकि वो 2 बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। देखो 1 2, तो एक ही मॉलिक्यूल में सपोज 2 डोनर एटम है तो बाइडेंटेड, एक ही मॉलिक्यूल में 6 डोनर एटम्स है तो हेक्साडेंटेड, और ये था मोनोडेंटेड, करेक्ट। अब ये भी है, एक है ये इथिलीन डायमाइन, सो दिस इज इथिलीन, और ये डायमाइन, तो ये कौन सा कितना डेंटेड हुआ? बाइडेंटेड, क्योंकि ये भी 2 बार बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल के साथ, 1 2, तो दिस इज ऑल्सो बाइडेंटेड। सो दिस 2 आर बाइडेंटेड एंड दिस इज हेक्साडेंटेड लिगैंड्स। दिस कैन मेक 6 बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम। कभी कभी MCQ में पूछते हैं EDTA कितना बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल के साथ? 6, और ऑक्सालेट और ये इथिलीन डायमाइन 2 2। Next is ambident ligand. Ambident ligands are special type of ligands because they can form bond with central metal atom via 2 atoms. देखो अभी हमारे पास एग्जाम्पल है NO2 दैट इज नाइट्रो, ये वाया नाइट्रो भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ
बॉन्ड बना सकता है वाया ऑक्सीजन भी, देखो वाया नाइट्रोजन भी वाया ऑक्सीजन भी। तो नाइट्रो 2 एटम के साथ बना सकता है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड, पर एक बार में एक ही यूज़ करेगा। इसका मतलब जो वो नाइट्रोजन के साथ मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तब वो ऑक्सीजन यूज़ नहीं करेगा, और जब वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तब वो अपना नाइट्रोजन नहीं यूज़ करेगा। समझ में आया? मतलब एक बार में वो एक ही बनाएगा पर वाया 2 बना सकता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है एम्फीबियस एनिमल्स, दैट इज फ्रॉग, जो जमीन पे भी रह सकते हैं पानी में भी। तो सिमिलर यहाँ वो 2 एटम थ्रू बना सकता है, बट याद रखना जब वो नाइट्रोजन थ्रू बनाएगा तो ऑक्सीजन से नहीं, ऑक्सीजन से बनाएगा तो नाइट्रोजन से नहीं। मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉलीडेंटेड एंड मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड क्यों? क्योंकि एक सिंगल एटम डोनर एक बार में एक ही से बना रहा है, पर इसमें 2 एटम से जो बॉन्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है HCl, जहाँ पे सल्फर भी मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन भी, बट एक बार में एक ही बनाएगा। यदि सल्फर ने बनाया तो नाइट्रोजन ने नहीं, नाइट्रोजन ने बनाया तो सल्फर ने नहीं। So these are the 3 types of ligands: monodentate ligands, polydentate and ambidentate. Next are important terms used in coordination chemistry. So this can be asked for 1 or 2 marks question, and even to understand coordination chemistry, this is very important. So first term is coordination sphere. So basically coordination sphere होता क्या है? So सेंट्रल मेटल एटम अपने लिगैंड के साथ एक क्लोज ब्रैकेट में प्रेजेंट होता है। जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तब हम हमेशा सेंट्रल मेटल एटम को उसके खुद के अटैच्ड वाले लिगैंड के साथ, ये वर्ड याद रखना, खुद के अटैच्ड, जो भी सेंट्रल मेटल एटम को अटैच्ड लिगैंड होगा उसके साथ उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो भी उस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा वो होगा काउंटर आयंस। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा काउंटर आयंस। नाउ सी द एग्जांपल। सो दिस वाज वन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच वाज प्रोवाइडेड टू मी। अब इसको मैंने देखना है, देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हुआ तो ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हुआ तो ये हुआ काउंटर आयन। सो दिस इज द काउंटर आयन एंड दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जब भी मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको पानी में मिलाऊंगी तब मुझे काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर दोनों अलग अलग होके मिलेंगे। जैसे मुझे NaCl मिलता है, जब मैं नमक को पानी में मिला देती हूँ तो याद है कैसे बनता है, Na प्लस Cl माइनस। सिमिलरली जब मैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में मिलाऊंगी तो मुझे मिलेगा K प्लस और FeCN6 माइनस। तो ये हुआ मेरा काउंटर आयन और ये हुआ मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर यदि चार्ज हो तो हम उसे कॉम्प्लेक्स आयन भी बोलते हैं। तो तुम बुक में ये भी देखोगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज है तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स आयन वर्ड भी यूज़ किया है, बट बोथ आर वन एंड द सेम। अब याद रखना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ये दो ये हैं तो ये होता आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल मतलब पानी में मिलाते ही अलग होना। सो NaCl इज आयोनाइजेबल, मतलब पानी में मिलाते Na प्लस Cl माइनस अलग हो जाता है। तो K प्लस आयोनाइजेबल लिगैंड है, बट दिस इज नॉन आयोनाइजेबल। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स आर नॉन आयोनाइजेबल, मतलब Fe और Cn माइनस अलग अलग नहीं हो सकते, वो हमेशा साथ में रहेंगे। तो FeCN6 माइनस आर नॉन आयोनाइजेबल while these are ionizable. So एक क्वेश्चन है, can you write ionization of NiNH3 and identify coordination sphere and counter ions? तो इसको हमको आयोनाइज करके लिखना है। तो सिमिलरली ऊपर की तरह ही देखो, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उसे हम अलग करेंगे। तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर यहाँ क्या था, K4, इसलिए हमने उसको 4K प्लस लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास Cl2, इसलिए हम इसे लिखेंगे 2Cl। अब Cl के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -1, क्योंकि वो हैलोजेंस है तो उसके ऊपर चार्ज होता है -1। प्लस कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी अलग नहीं होता, याद रखना, वो पूरा ब्रैकेट वैसे के वैसे ही रहेगा बिना डिसोसिएट हुए। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स आर नॉन आयोनाइजेबल, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस। अब देखो ये पूरा जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर चार्ज 0 है, तो Cl के ऊपर एक माइनस चार्ज है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, 2 प्लस।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास NaCl है, ठीक है, जब मैंने उसे अलग किया तो Na प्लस होके अलग हुआ, तो Cl के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए था कि इसके ऊपर 0 चार्ज हो, तो होगा 1 माइनस, तो ये बैलेंस है, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे जब मैं 2Cl को अलग कर रही हूँ, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो इसके ऊपर टोटल कितना होना चाहिए, यहाँ पे 2 माइनस है तो 2 प्लस, तो दोनों सब मिला के ये कुल मिला के इसका चार्ज कितना होगा, इस मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 0। यहाँ पे +4 चार्ज बाहर निकाला था, इसलिए इसके ऊपर हमने -4 चार्ज दिया था। यहाँ पे 2 माइनस चार्ज बाहर निकाला, इसलिए इसके ऊपर हमने 2 प्लस चार्ज दिया है। सो दिस इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नाउ to identify coordination sphere, this is the coordination sphere and this is the counter ion. Next, charge number of complex ion and oxidation state of metal ion. हमें charge number find out करना है और oxidation state. So जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज होता है, जो भी चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर होता है, वो प्लस हो या माइनस हो, वो होता है चार्ज नंबर। सो दिस इज द चार्ज नंबर। तो इसका चार्ज नंबर कितना है, -4। तो जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज है उसको बोलते हैं चार्ज नंबर, ठीक है। वो माइनस में हो सकता है या प्लस में हो सकता है। यहाँ पे निकल के लिए +2 था, यहाँ पे एग्जाम्पल में है -4। अब ये चार्ज नंबर कैसे होता है, चार्ज नंबर इज एक्चुअली सम ऑफ, चार्ज नंबर इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस चार्ज ऑन लिगैंड। तो चार्ज नंबर क्या होता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस चार्ज ऑन लिगैंड। अब हमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। Cn कितना हमारे पास है, 6 इंटू एक Cn पे कितना चार्ज होता है, -1, ये याद रखना है। Cn के ऊपर होता है -1 चार्ज। हैलोजेंस जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के ऊपर भी होता है -1 चार्ज। अमोनिया और वाटर के ऊपर चार्ज होता है 0, ठीक है। और इसके बाद OH माइनस के ऊपर होता है, OH के ऊपर होता है -1 चार्ज। ये जल्दी जल्दी से लिख लो, मतलब तुम्हें कभी भी पूछेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करने के लिए या चार्ज नंबर, तुम लोग ये वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो। मेरे पास Cn है तो Cn के ऊपर है -1 चार्ज, इसलिए मैं करूँगी 6 इंटू -1, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल विल बी इक्वल टू -6 इक्वल्स टू -4, क्योंकि ये पूरा सम मिला के बनता है चार्ज नंबर। अब इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल निकालना है, तो ये -6 इस तरफ आ जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो -4 + 6 इज +2। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन माई मेटल इज +2। तो ये समझ में आ गया, ये है चार्ज नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चार्ज नंबर इज सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एंड चार्ज ऑफ द लिगैंड। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा है कोऑर्डिनेशन नंबर, बट वहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर और यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा अलग है। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो जितने लिगैंड्स उस सेंट्रल मेटल आयन को अटैच होते हैं वो बनाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सो यू कैन डिफाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर एज coordination number of metal ion in a complex is the number of ligand donor atoms directly attached to it or the number of electron pairs involved in coordination bond। तो हमें याद रखना है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी लिगैंड प्रेजेंट होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं होता, क्योंकि वो आयोनाइजेबल स्पीशीज है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं वो काउंट होते हैं, ठीक है, ये वाले काउंट होंगे जो नॉन आयोनाइजेबल स्पीशीज है। तो डायरेक्टली अटैच जो भी लिगैंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है जो डायरेक्टली अटैच है मेटल को, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे 4 अमोनिया है, 2 Cl है, तो 4 + 2 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 6। नेक्स्ट ये FeC2O4, इसको बोलते हैं हम ऑक्सैलेटो। हमने पढ़ा था ना अभी ऑक्सैलेटो, तो आपको याद है ऑक्सैलेटो कौन से टाइप ऑफ लिगैंड है, जल्दी जल्दी से हम लोग पीछे जाके देखते हैं ऑक्सैलेटो कौन से टाइप ऑफ लिगैंड है। सो ऑक्सैलेटो इज अ बाइडेंटेड लिगैंड, ये याद रखो। मतलब एक ऑक्सैलेटो 2 बॉन्ड बनाता है। एक ऑक्सैलेटो कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड, क्योंकि इट इज एन बाइडेंटेड लिगैंड। तो
अभी हम लोग देखेंगे जल्दी से वापस जाके कि ऑक्सालेटो हमारे पास कितना है 3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा नहीं, क्योंकि एक ऑक्सालेटो बनाता है 2 बॉन्ड, तो 3 कितने बनाएंगे 3 × 2 6 बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं जो मेटल को लिगैंड से जोड़ रहे हैं वो है 6 बॉन्ड्स। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इज 6। ओके, सिमिलरली कोबाल्ट को E है, En मतलब इथिलीन डाइअमाइन। अब इथिलीन डाइअमाइन भी बाइडेंटेड लिगैंड है, यदि आपको याद है तो हमने वो भी पढ़ा है कि इथिलीन डाइअमाइन भी बाइडेंटेड लिगैंड है। एक इथिलीन डाइअमाइन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 कितने बनाएंगे 6 बॉन्ड। सो यहाँ पे भी कोबाल्ट के साथ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट है 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हो गया। तो समझ में आया, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितना बॉन्ड बना सकता है उस सेंट्रल मेटल एटम लिगैंड्स के साथ। तो यहाँ पे 6 बना रहा था क्योंकि ये सब मोनोडेंटेड लिगैंड थे 6, यहाँ पे बाइडेंटेड लिगैंड्स थे तो भी 6। ठीक है, अभी इनका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, अभी देखो मोनोडेंटेड है तो स्ट्रक्चर निकालना बहुत आसान है कि आप चारों प्लेन में चारों अमोनिया लिख दो, NH3 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 NH3, ऊपर एक Cl लिख दो, ऊपर एक Cl, नीचे एक Cl, ये हो गया हेक्साडेंटेड। देखो 6 बॉन्ड बनाए, ये बहुत इजी था। अब बाइडेंटेड के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, तो बाइडेंटेड के लिए एक स्ट्रक्चर निकाल के दिखा देती हूँ मैं। अभी मेरे पास Fe है, ठीक है, और वो ऑक्सालेटो को अटैच है तो वाया ऑक्सीजन, तो ये हुआ। अब इसको C डबल बॉन्ड O, ये एक हुआ, ये एक ऑक्सालेटो हुआ जो 2 बॉन्ड बना रहा है Fe के साथ। अब दूसरा ऑक्सालेटो, सो दिस इज O, दिस इज O, C, ठीक है, ये दोनों ने, ये दूसरे ने भी 2 बॉन्ड बनाए, दोनों ने मिला कि 4। अब ये तीसरा ऑक्सालेटो, क्योंकि एक ऑक्सालेटो 2 बॉन्ड बनाता है, ये याद रखना है आपको। एक इथिलीनामाइन भी 2 बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखेगा। सो सी दिस हैज़ मेड 6 बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 and this is 6, so this is an hexadentate ligand। Now next question, a complex is made up of cobalt 3 and consists 4 ammonia molecules and 2 Cl ions as ligands। So what is the charge number and formula of the complex ion। अभी आपको क्या याद रखना है, CO मेरे पास ऑक्सीडेशन 3 में, क्या क्या गिवन है मेरे पास, CO मेरे पास ऑक्सीडेशन कितने में है +3 में। मेरे पास कितने अमोनिया हैं, मेरे पास अमोनिया है 4। मेरे पास कितने Cl हैं, मेरे पास Cl हैं 2। अब मुझे बताना है कि उस कॉम्प्लेक्स का चार्ज नंबर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा। तो अभी पहले हम चार्ज नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो चार्ज नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है चार्ज नंबर इज द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस चार्ज ऑन द लिगैंड्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कितना है +3, प्लस अमोनिया कितना है मेरे पास 4, पर अमोनिया पे चार्ज कितना होता है 0, प्लस क्लोरीन कितना है मेरे पास 2, पर क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है -1 इक्वल्स टू चार्ज नंबर। सो चार्ज नंबर को हम लोग x लेंगे। अब ये देखो 3 - 2 इक्वल्स टू x, देयरफॉर x इक्वल्स टू +1। तो मेरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज हुआ +1। तो अब मैं कॉम्प्लेक्स बनाऊंगी। कॉम्प्लेक्स मेरा कैसा दिखेगा, देखो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हमने देखा था। तो ये एक कोबाल्ट है, उसके पास 4 अमोनिया हैं और 2 Cl हैं, ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज अभी हमने देखा, चार्ज नंबर कितना हमने निकाला +1। तो ये कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है +1। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और चार्ज नंबर कितना था +1। सो स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज CO NH3 4 टाइम्स Cl2 +1, और चार्ज नंबर है +1 क्योंकि वो सम है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस चार्ज ऑन दी लिगैंड्स। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। सेकंड क्वेश्चन में हमें निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोबाल्ट है और इस कोबाल्ट के साथ ये लिगैंड है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो Cl कितना डेंटेड लिगैंड है, मोनोडेंटेड, इसलिए यहाँ पे 2 Cl है, मतलब 2 बॉन्ड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन।
EN कितना डेंटेड लिगैंड है, बाई डेंटेड, 2 EN है तो 2 into 2 which will make you answer 6. So 4 plus 2 6. So cobalt coordination number over here is 6. नेक्स्ट IR का निकालना है यहाँ पे। IR में Cl है, वापस कितने Cl हैं, 2 प्लस ऑक्सालेटो है। ऑक्सालेटो कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेड। एक ऑक्सालेटो 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 कितना बनाएगा, 4, टोटल करोगे तो 6। सो IR का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 6। नेक्स्ट इज प्लैटिनम। इसके अंदर इसमें कितना है लिगेंड्स, हमारे पास 4 लिगेंड्स है। देखो 2 नाइट्रो 2 अमोनिया, हमने देखा है अमोनिया इज अ मोनोडेंटेड लिगैंड तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, प्लस नाइट्रो भले ही एम्बिडेंट लिगैंड है, नाइट्रो इज एन एम्बिडेंट लिगैंड पर एक बार में वो कितना बॉन्ड बनाता है, एक ही, इसलिए 2 नाइट्रो है तो 2 बॉन्ड, टोटल कितना हुआ 4, इसलिए यहाँ पे प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ 4। सो कोबाल्ट का है 6, IR का है 6, प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। देखो डबल सॉल्ट, यहाँ पे देखो एग्जांपल, ये है डबल सॉल्ट, ये है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। दोनों भी दिखने में एकदम सेम है, दोनों भी दिखने में एकदम सेम है, बट देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस। तो मैं डिफरेंस कैसे पता लगाऊंगी कि जो मुझे दिया हुआ डबल सॉल्ट है या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, उन्हें पानी में मिला के। डबल सॉल्ट पानी में जाते ही पूरा डिसोसिएट हो जाता है, जैसे NaCl, Na अलग Cl पूरा डिसोसिएट हो रहा है, पूरी तरह टूट रहा है, तो डबल सॉल्ट भी पूरी तरह टूटता है। तो ये देखो ये मॉलिक्यूल है, इसमें Fe पूरी तरह अलग हो जाएगा, Fe2+, SO4 2 है तो 2 SO4 बाहर आ गए, NH4 2 है, NH4 बाहर आ गए, वाटर अलग हो गए, पूरी तरह वो मॉलिक्यूल अलग हो गया, मतलब पूरी तरह डिसोसिएट। सो डबल सॉल्ट डिसोसिएट्स इन वाटर कंप्लीटली टू गिव सिंपल आयन, बट कोऑर्डिनेशन स्पीयर पूरी तरह, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पूरी तरह नहीं टूटते। वो किस चीज़ में ब्रेक होते हैं, काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन में। वो पूरी तरह नहीं ब्रेक होते, सिर्फ वो बनते हैं काउंटर आयंस और कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयंस आर नॉन आयोनाइजेबल स्पीशीज, ये हमने पहले ही पढ़ा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का कभी ब्रेक नहीं होता, दिस इज अ नॉन आयोनाइजेबल स्पीशीज। So coordination compounds are basically a coordination complex dissociates in water with at least one complex ion, सिर्फ उसमें एक complex ion होता है जो ब्रेक नहीं होता। So this is double salt and this is coordination complex. डबल सॉल्ट पूरी तरह डिसोसिएट होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आयन बन के डिसोसिएट होता है, पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द डबल सॉल्ट इज KCl MgCl2 6 वाटर। तो यहाँ पे K प्लस पूरी तरह अलग हो गया, Mg अलग हो गया, Cl अलग हो गया, ठीक है। तो डबल सॉल्ट डिसोसिएट्स कंप्लीटली व्हाइल द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डजंट डिसोसिएट completely. Next is Werner theory of coordination complex. This is one of the important theory to explain the structure of coordination complex or coordination compounds. तो उसके बहुत सारे postulates है, एक वन बाय वन हम देखेंगे। पहला postulate बताता है कि metals के पास 2 type of valencies होता है. So there are 2 valencies with metals. One is primary valency, one is secondary valency. तो ये होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। देयर आर 2 वैलेंसी ऑफ द मेटल एटम, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, ये मैं पहले से बता रही हूँ आपको, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो आयोनाइजेबल है। सो प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, while secondary valencies are non ionizable। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है वो नॉन आयोनाइजेबल होता है, वो ब्रेक नहीं हो सकता। सो सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल while primary valencies are ionizable. Now we'll see second postulate. The ionizable sphere consists of entities which satisfy the primary valency of metal. Primary valencies are generally satisfied by anions और कैटायंस, ठीक है। तो जो प्राइमरी वैलेंसीज होता है वो जनरली एनायंस के साथ या कैटायन के साथ सेटिस्फाई होता है, वो कभी न्यूट्रल आयंस नहीं होते। प्राइमरी वैलेंसीज आर नेवर न्यूट्रल आयंस, आइदर दे आर कैटायन और एनायंस। नेक्स्ट postulate, the secondary coordination sphere consists of the secondary valencies and these secondary valencies are non-ionizable and this valencies secondary valencies किससे satisfy होता है,
न्यूट्रल आयन से या फिर एनायन से। वो कैटायंस के साथ कभी सेटिस्फाई नहीं होता। तो प्राइमरी वैलेंसीज में होते हैं कैटायन या फिर एनायन, ठीक है, बट सेकेंडरी वैलेंसीज में होते हैं सिर्फ एनायंस या फिर न्यूट्रल आयंस, एनायंस या न्यूट्रल आयंस। और सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। सो इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इज 4 तो उसका सेकेंडरी वैलेंसी भी होगा 4। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल हियर इज 6 तो उसका सेकेंडरी वैलेंसी भी है 6, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर 4, द सेकेंडरी वैलेंसीज हैव अ फिक्स स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड द मेटल आयन। देखो प्राइमरी वैलेंसीज को कोई भी परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं होता मेटल आयन के आजू बाजू, कैसे भी रह सकता है, सिर्फ उसको सेंट्रल मेटल ये वाले का कॉम्प्लेक्स स्पीयर का या कोऑर्डिनेशन स्पीयर का उसको चार्ज बैलेंस करना है, तो ये कैसे भी उसके आजू बाजू प्रेजेंट हो सकता है। बट ये जो सेकेंडरी वैलेंसीज होते हैं उनका फिक्स अरेंजमेंट होता है, वो कैसे भी प्रेजेंट नहीं हो सकते, उनको एक फिक्स तरीके से प्रेजेंट होना है। तो क्या है, यदि हम बोले कि हमारे पास हेक्साडेंटेड लिगैंड है, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला मेटल है, तो उसके पास 6 लिगैंड्स होंगे, तो उसका स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहाइड्रल। जब भी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो उसका स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहाइड्रल। 4 लिगैंड प्लेन में, ये 4 लिगैंड एक प्लेन में, एक लिगैंड ऊपर, एक लिगैंड नीचे। जब मेरे पास मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, जब मेरे पास मेटल का कोऑर्डिनेशन 4 है तब 2 टाइप का स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक टेट्राहेड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल मतलब एक ये ऊपर, एक ये नीचे, ये दोनों प्लेन में, एक मेरी तरफ, एक मुझसे दूर। सो दिस इज टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर मतलब चारों लिगैंड एक ही प्लेन में। सो जब मेरे पास मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सेकेंडरी वैलेंसी 6 होता है तब वो ऑक्टाहेड्रल होता है। जब मेरे पास मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी 4 होता है तब स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होता है। तो पोस्टुलेट नंबर 4 यही बताता है हमें वेगनर का कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज वो कैसे भी नहीं प्रेजेंट होते, उनका फिक्स अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एक सॉल्व किया हुआ है, एक उसी की तरह हमें सॉल्व करना है, ठीक है। पहला 1 मोल ऑफ पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ COCl3। तो हमें क्या बोला है उन्होंने, हमारे पास 1 COCl3 का मॉलिक्यूल है एंड अमोनिया। अमोनिया हमारे पास बहुत सारा है, ठीक है, हमें नहीं पता वो कितना है। तो हमारे पास अमोनिया है, एक COCl3 एक अमोनिया है, और हमने बहुत ज़्यादा AgNO3 लिया है, ठीक है। प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ AgCl, मतलब पहले 1 मोल ऑफ COCl3 और अमोनिया को रिएक्ट किया, X मिला। इस X को फिर मैंने फर्दर AgNO3 के साथ रिएक्ट किया, इस X को मैंने AgNO3 के साथ रिएक्ट करते ही मुझे 2 AgCl मिले, ठीक है। अब मुझे इस क्वेश्चन से बताना है सॉल्व करके कि कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट 6 है, वो तो हमने पहले भी देखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना होता है 6। तो पहले हमें बताना है एक्स कैसा दिखेगा। ये एक्स के लिए हमें ये देखना होगा, देखो कितना, देखो ये एक्स बनने के लिए Cl यूज़ होने वाला है। Cl यूज़ होगा तो Cl यूज़ होते वक्त एक सेकेंडरी वैलेंसी में भी जाएगा और प्राइमरी वैलेंसी में भी जा सकता है। और याद रखना है सिर्फ प्राइमरी वैलेंसीज आयोनाइजेबल है, मतलब सिर्फ प्राइमरी वैलेंसीज को हम लोग मेटल से अलग कर सकते हैं। यहाँ देखो AgNO3 डालते ही मुझे 2 AgCl मिला, मतलब 2 Cl हमने मेटल से अलग किया, ये याद रखो। AgNO3 डालते ही 2 AgCl मिला, मतलब 2 Cl को मैंने मेटल कॉम्प्लेक्स जो X है उससे अलग कर लिया है। मतलब उसमें कितने Cl आयोनाइजेबल थे, 2 Cl ऐसे थे जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर थे, इसलिए मैं उन्हें अलग कर पाई। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर फिर कितने Cl थे, 1। मैं कैसे बोल पाई कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक ही Cl था, क्योंकि मेरे पास एक ही COCl3 है, एक ही COCl3 है, मतलब कितने Cl मेरे पास 3। 2 बाहर थे क्योंकि वो प्राइमरी वैलेंसीज में थे, इसलिए मैंने अलग किया, इसलिए 2 बाहर थे तो एक अंदर था। एक Cl अंदर है, मेरे पास CO है, कोबाल्ट है, और मेरे को पता है मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना है 6, मतलब कितने अमोनिया होने चाहिए उसके पास 5। तो मेरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या हुआ, CONH3 5 ClCl2। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ जल्दी जल्दी से।
मेरे पास एक COCl3 है, मतलब 1 कोबाल्ट एंड 3 क्लोरीन। अमोनिया है, मुझे नहीं पता कितना है, वो दोनों मिलके एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब मैं AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रही हूँ तो मुझे 2 AgCl मिल रहा है। मुझे मेरा X का स्ट्रक्चर बताना है। 2 AgCl मिल रहा है, मतलब 2 Cl प्राइमरी वैलेंसीज में प्रेजेंट है, तो मेरे 2 Cl प्राइमरी वैलेंसी में लिख दिया। फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाया और CO लिखा। 2 Cl मैंने प्राइमरी वैलेंसी की यूज़ किया, मेरे पास 3 Cl है, तो 1 Cl बच गया सेकेंडरी वैलेंसी के लिए। और मुझे पता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट 6 है, तो 1 Cl ने सेटिस्फाई किया, तो बाकी 5 कौन सेटिस्फाई करेगा? अमोनिया। इसलिए इसका स्ट्रक्चर हुआ CONH3 5Cl Cl2। ठीक है, अब इसी की तरह हमको सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन में है, वापस हमारे पास 1 मोल ऑफ COCl3 है, वापस 1 मोल ऑफ COCl3 है। ठीक है, अमोनिया है, मुझे नहीं पता कितना अमोनिया है मेरे पास। ये दोनों ने रिएक्ट करके वापस X दिया, X को वापस मैंने AgNO3 के साथ रिएक्ट किया है, मुझे मिल रहा है एक ही AgCl। पहले कितने AgCl मिले थे? 2, अब मुझे मिल रहा है एक ही AgCl। वापस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट है 6। यहाँ पे वापस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना है मेरे पास? 6। ठीक है, तो वापस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट 6 हो गया। अभी मुझे सॉल्व करना है। तो देखो, अभी मेरे पास AgNO3 को रिएक्ट करने के बाद कितने AgCl मिले? 1 AgCl। मतलब प्राइमरी वैलेंसी में कितना Cl प्रेजेंट है? सिर्फ एक। पहले 2 AgCl मिले थे, इसलिए मैंने बोला प्राइमरी वैलेंसी में 2 Cl है, क्योंकि सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी से आयोनाइजेबल है। यहाँ पे 1 AgCl मिला, इसलिए सिर्फ एक Cl बाहर है। फिर ब्रैकेट के अंदर अब मैं लिखूँगी CO है, मेटल एटम मेरे पास CO है। अब कितने Cl2 बचे? एक यूज़ कर लिया, 3 Cl थे मेरे पास, तो अब बचे Cl2, मतलब 2 Cl। एक Cl मैंने यूज़ कर लिया, 2 अंदर है, टोटल हो गए 3। एक कोबाल्ट था, यूज़ कर लिया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट वापस 6 है, मतलब अमोनिया कितना रहेगा? 4। सो देयर इज NH3 4 Cl2Cl। सो द स्ट्रक्चर ऑफ माई कॉम्प्लेक्स इज CONH3 4 टाइम्स Cl2। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। एक आयोनाइजेबल Cl जो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके 1 AgCl दे रहा है। सो इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसे हो गया है? CONH3 4 टाइम्स Cl2Cl। 1 Cl is primary valency, 2 Cls and 4 NH4 are secondary valency and cobalt. So this is all for this session. Thank you. If you have any doubt, you can ask on this email ID askyadoubts04@gmail.com. If you have any suggestion, any comment, you are free to give me on this Gmail ID or in the comment box. If you want notes, you can ask me even on this Gmail ID and I will mail it to you. So that's all for today. If you like my video, please hit the thumbs up below, and if you want more videos, so forward this video to more and more of your friends so that I can make more and better videos for you. So that's all for today. Thank you. And today's thought is never lose hope. You never know what tomorrow will bring for you. So that's all for today. Thank you.